Hello students, welcome to new video. Today we are going to discuss about modern periodic law. Okay, modern means what? Develop, more develop, which have very less limitation, which do not carries a huge certain circumstances that we have seen in earlier one. We have seen merits of Mendeleev's periodic table, demerits of Mendeleev's periodic table. On the basis of that we can conclude that is these Mendeleev periodic table is not that much essential as compared to present time. It is not that much means that much sustentions are not there. Because of that we can sustain our like means nowadays 118 elements were discovered till now, till today there was total 118 elements are there. Okay, so in Mendeleev's periodic table there was a space are available, but in that there is no space for noble gases. Noble gases shows exactly similar properties, or not exactly but approximately similar properties it shows, but in that basis of that periodic table or Mendeleev's periodic table, it is very difficult to adjust all these elements which are discovered furthermore or next more as per the Mendeleev's theory. So that's what Mendeleev's theory cannot be get considered, but it is helpful to study more further for it, to study it for these elements in future. These theory, see students, Mendeleev's periodic table or Mendeleev's periodic table was found, or that in that era if you are seen, so this area is nothing but the 1860 to 1880. In between that Mendeleev has done this work. Actually I can tell you the year also, 1868 to 1872. In between that period Mendeleev has discovered this periodic properties. He has given that properties of elements are periodic function as their atomic masses increases. So in that time there was not that much of developed technology is not there. There is only circumstances are there, and you know in that particular era whatever he has concluded, that things are approximately equal till now also. देखिए बच्चों 1868 से 1872 के बीच में मेंडेलीव्स ने ये एलिमेंट के बारे में डिस्कवरी किया था, एलिमेंट्स के बारे में उसने जो है अपनी थियोरी दी थी. लेकिन अगर हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं, मेंडेलीव्स के बारे में देखते हैं, तो 1868 टू 1872 ये पीरियड अगर हम लोग देखेंगे तो इस पीरियड में टेक्नोलॉजी क्या होती है या फिर डेवलप टेक्नोलॉजी क्या होती है इसके बारे में तो कुछ मालूम ही नहीं था, क्योंकि ये अर्ली 19th सेंचुरी थी, लेट 18th सेंचुरी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं. आजकल तो हम लोगों को थोड़ा सा भी डाउट आता है तो हम लोग फट से मोबाइल लेते हैं, टाइप करते हैं, 2 सेकंड के अंदर, 3 सेकंड के अंदर, 2 मिनट के अंदर हम लोगों को आंसर्स मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ मोबाइल नेटवर्क, वॉट एवर द नेटवर्क यू हैव चूजन. सॉरी, जोक्स अपार्ट, बट सी स्टूडेंट्स, नाउ टेक्नोलॉजी इज दैट मच डेवलप. उस टाइम पे इतना डेवलप टेक्नोलॉजी नहीं था, मेंडेलीव्स के टाइम पे इतना डेवलप टेक्नोलॉजी नहीं था. टेक्नोलॉजी डेवलप कब हुई? लेट 19th सेंचुरी में हुआ और अर्ली 20th सेंचुरी में हुआ. तो उस ज़माने में उसने जो कोई भी कंक्लूजन्स दिए, मेंडेलीव्स ने जितने भी कंक्लूजन्स दिए, वो सारे कंक्लूजन्स आज भी अप्रॉक्सीमेटली, इक्वल तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो है वो बराबर ही है. तो आज के इस वीडियो का ये क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है. और पिछले वीडियो में मैं जो सवाल पूछा था आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो उसका जवाब सबसे पहले दिया था संतोष पवार सर ने दिया था मुझे सबसे पहला आंसर. एंड सेकेंड आंसर देने वाले थे, सेकेंड आंसर जिन्होंने दिया था उनका नाम था आदित्य. सो तो आप दोनों का थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन दैट यू give me a correct answer. Today's question is, in that videos the question is, देखिए ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी कि मेंडेलीव्स ने दी और आज भी उसको एग्जैक्टली एज इट इज़ लिया जाता है, उसमें थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं है. ओके, तो ये किस मतलब कौन से एलिमेंट की प्रॉपर्टी, चलिए ठीक है मैं एलिमेंट के बारे में बता देता हूँ. मैं गर्मीनियम की बात कर रहा हूँ, तो गर्मीनियम की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी जो मेंडेलीव्स ने बताई और आज भी हम लोग वैसे के वैसे ही वो प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं. ओके, ऐसी दो प्रॉपर्टीज़ है.
तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ऐसी कौन सी दो प्रॉपर्टीज़ है जो मेंडलीव्स ने उस टाइम 1868 टू 1872 के बीच में दी थी, लेकिन आज भी जैसे के वैसे वो हम लोग उस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। अभी चलते मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, द साइंटिफिक वर्ल्ड डिड नॉट हैव एनीथिंग about the interior of an atom when these modern periodic table or Mendeleev's periodic table put forth that the period after that the discovery of an element will be started and revolutionary period will be started for these elements. Means because of Mendeleev's periodic table, it is not, as compared to that time, in that time देखिए उस टाइम पे 30 एलिमेंट थे, तो उस वजह से उतना कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते नहीं थे, सिर्फ 30 एलिमेंट्स को तो स्टडी करना था और मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल सेटिस्फैक्ट्री था। उन 30 एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए वो बहुत बेस्ट ऑप्शन था उस टाइम पे। लेकिन जैसे जैसे ये डेवलपमेंट, जैसे जैसे इस एलिमेंट के बारे में डिस्कवरी होने लग गई, मेंडलीव के बाद में क्या हुआ, सडन रिवोल्यूशनरी चेंज आने लग गए एलिमेंट्स के बारे में, क्योंकि साइंटिस्ट स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम and the atomic mass number of an atom. These atomic number in Mendeleev's periodic table only indicate the series number of an element. It only indicates the serial, like hydrogen has 1, lithium has 2, beryllium has 3, hydrogen, lithium, beryllium, boron, carbon. ये जो है ना, ये सब कुछ जो है ना, ये सिर्फ क्या करता है, आपको जो है एलिमेंट के बारे में बताता है। ओके, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स के बारे में इंडिकेट करता है। ओके, लेकिन जैसे जैसे साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, वैसे वैसे ये एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज, मतलब ये स्टडी जो है इंक्रीज होने लग गई। अब मैं इसके बारे में आपको एक ईयर बता देता हूँ, आप यू मस्ट हैव टू राइट डाउन दिस ईयर ऑल्सो। इन 1913 AD, द इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी मोस्ले हैज गिव हिज contribution to study of these periodic properties of an element. He stated that he used X-ray tube. X-ray tube आपको मालूम होगा, अगर आपके पाँव में क्रैक या फिर फ्रैक्चर आता है या फिर घुटनों में फ्रैक्चर होता है तो हम लोग अस्पताल में जाते हैं, और अस्पताल में जाने के बाद में जब हम लोग डॉक्टर को बताते हैं कि मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर सबसे पहले एक्सरे करवाते हैं। सो एक्सरे की एक ट्यूब होती है जो कि यू ट्यूब शेप होती है, कुछ इस तरह से होती है, और इसके अराउंड जो है, जो एक्सरे क्रिएट करने वाले, जो एटॉमिक एनर्जी क्रिएट करने वाले पार्टिकल जो है रिवॉल्व करते हैं, और यहाँ पे होता है हमारा करंट सप्लाई। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव देते हैं, यहाँ से नेगेटिव देते हैं, ये ऊपर होता है, और यही चीज़ जो है डॉक्टर जो है हमारे पैर के आसपास या फिर जितना भी हमारे इन जो एरिया है उस एरिया के पास में लेके आता है, और उससे हम लोग बता सकते हैं कि हमारे मतलब पाँव में फ्रैक्चर है या फिर सेवियर डैमेजेस है या फिर नॉर्मल डैमेजेस है। विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन नो इट वेरी वेल। सो with the help of that tube, atomic number of Z of an element correspond to the positive charge on a molecule, and the number of protons in the molecules of the atom of that element. These relative that the atomic number is more fundamental property of an element than that of atomic mass number. एटॉमिक नंबर जो है प्रत्येक एलिमेंट में अलग अलग आ रहे थे, मतलब कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एलिमेंट में जो है अलग अलग एटॉमिक नंबर आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहे हैं या फिर जैसे जैसे इन नंबर्स के बीच में इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब जैसे जैसे ये इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो इसमें जो है एटॉमिक मास नंबर के बजाय एटॉमिक नंबर जो है मोर फंडामेंटल हुआ, जिस वजह से एलिमेंट्स की स्टडी करनी बहुत ज़्यादा इजी हो गई। सो जो मोस्ले का पीरियोडिक टेबल है उसमें हम लोग एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देखते हैं, ना कि एटॉमिक मास नंबर। दोनों चीज़ें डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर अलग है, एटॉमिक मास नंबर अलग है। सी, अब मोस्ले ने क्या कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एन एटॉमिक नंबर्स। मेंडलीव ने क्या कहा था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक इन फंक्शन ऑफ एन एटॉमिक मास नंबर, और मोस्ले ने क्या कहा, द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर मोर फंक्शन और इट इज मोर फंक्शन एज एन एटॉमिक नंबर। सो ये हुआ आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का
जो है वो मतलब फर्स्ट फेज ऑफ इंट्रोडक्शन। अब जो सेकेंड फेज लगता है ये आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। सो देखिए बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। I don't want it to increase the length of the video, that's what I'm going to write it down. See, the classification of element resulting for the arrangement of these elements in an increasing order of their atomic number. See, Mendeleev has done atomic mass number and Mosley done atomic number. That is the similar, that is the only minor difference, but these minor difference create more revolutionary changes in the modern periodic table. So he said that he has started arranging these elements as per their atomic number, not as per their atomic mass number. So he founded that the properties of element can be predicted accurately with the help of modern periodic table. So formed on the basis of this atomic number, the modern periodic table is also called as the long form of the periodic table. See, write down this statement. The modern periodic table is also called as long form of the periodic table. Okay. In the modern periodic table, elements are arranged in the accordance with their atomic number, which means that if atomic number increases, at that time the elements start increasing. Right now on the screen you are able to see the video, you are able to see the table. In that table you are able to see that these elements are arranged as increasing order of their atomic number. So most of the elements of Mendeleev's periodic table appear to be removed. He started assembling these position of an hydrogen is not removed even in the modern periodic table. In Mendeleev's periodic table, hydrogen placed at one place in first group, and in modern periodic table also he has placed this hydrogen in the first group and first period only. इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी वही कॉम्प्लिकेशंस है जो कि डिमेरिट्स में हमने मेंडलीव्स के डिमेरिट्स में देखा है, दैट इज पोजीशन ऑफ एन H एटम, H2 लिख देता हूं मैं हाइड्रोजन एटम में, ठीक है। नेक्स्ट, वी हैव सीन इन द previous standard that the electron gradually on the atom in that way. See, अब यहाँ पे मैंने क्या बता दिया आपको, हाइड्रोजन के बारे में बता दिया, ठीक है बच्चों। हाइड्रोजन जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर देखते तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी इसका कोई प्लेस फिक्स नहीं हुआ, लेकिन जब हम लोग इसको देखते हैं तो नॉर्मली क्या हुआ, ये ग्रेजुअल चेंजेस हम लोगों को दिखाई देने लग गए। नेक्स्ट, इसमें क्या हुआ मालूम है कि पिछले क्लास में जैसे हमने देखा था, दैट इज न्यूक्लियस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट। ओके, सो the total number of an electron in an outermost sum as atomic number. Relation between the atomic number and element as its electronic configuration clearly seen in the modern periodic table. अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इसमें 1 नंबर, हाइड्रोजन का 1, बेरिलियम का 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऐसे नंबर जो है ये किससे है। तो इन्होंने क्या किया मालूम है, एक एलिमेंट लिया और उस एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उतना उसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। मतलब समझिए हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1, तो हाइड्रोजन का नंबर क्या हुआ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हुआ 1। हालांकि एटॉमिक मास नंबर भी हाइड्रोजन का क्या लेते हैं, 1.023 लेते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 ही ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड हुआ कि एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है। मीन्स वॉट एवर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स व्हाट, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल और दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। इन द पर्टिकुलर एलिमेंट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस। See what I am going to tell you, in that periodic table, modern periodic table, these modern periodic table are start arranging as per the increasing order of their atomic number. So atomic number कहाँ से लेंगे, तो उन्होंने क्या किया मोस्टली ने कि इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, एक एलिमेंट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द outermost shell of an electron. So these are nothing but the atomic
number of that particular electron. So atomic number की कौन क्या है, तो atomic number is nothing but the electronic configuration of an element. So this is nothing but the modern periodic table. In next video lecture we are going to discuss about structure of modern periodic table. So for that you wanted to notification. If I upload the video, you want notification. For that you have to subscribe my channel and press the bell icon. Because of that only you will get the notification. Whenever I'll upload the video, you will get the notification. I hope you understand this phenomenon. If you have a doubt, so you can ask me in the comment box which is given below. Otherwise, like, share and subscribe. Thank you.